हेलो वेलकम टू ऑल मेरे प्यारे बच्चों, आप कैसे हैं। और आज मैं आपका बहुत स्वागत करता हूं मेरे यूट्यूब चैनल दैट इज A to Z फिजिक्स ट्यूटोरियल पर। ठीक है बच्चों, कल जैसे हम लोग ने कुछ बेसिक प्रॉपर्टीज ऑफ चार्जेस के बारे में देखा था, लेकिन आज उसके थोड़ा आगे और हम चलेंगे और हम देखेंगे कि ये चार्जेस इंटरैक्ट कैसे करते हैं। मैंने आपसे कल वादा किया था मैं आपके लिए वीडियो लाने वाला हूँ उसके लिए, तो आज मैंने इस पर वीडियो प्रिपेयर किया है। और जो लॉ इस चार्ज के बीच में जो फोर्सेस होते हैं, चार्ज कैसे इंटरैक्ट करते हैं, जो इनको गवर्न करता है, उसको हम कहते हैं जो कूलम्ब्स लॉ। तो आज का हमारा मेन टॉपिक है दैट इज कूलम्ब्स लॉ। आप देख सकते हैं यहाँ पर मैंने लिखा हुआ है। और इस कूलम्ब्स लॉ को चार्ल्स अगस्टिन डी कूलम ने इसको समझने की कोशिश की थी यूजिंग हिज एक्सपेरिमेंट। और उन्होंने इस एक्सपेरिमेंट को हम लोग बोलते हैं टॉर्शन बैलेंस, और उसके थ्रू उन्होंने इसको समझ में आया था कि कूलम्ब्स लॉ बेसिकली क्या होता है, ये फोर्सेस का मैग्नीट्यूड कितना होता है, ये फोर्सेस किस तरह से काम करते हैं, फोर्सेस का एग्जैक्ट नेचर क्या है, हाउ इट डिपेंड्स अपॉन द चार्ज, हाउ इट डिपेंड्स अपॉन द डिस्टेंस, ही कम टू नो। उसके लिए हमने इसके लिए कुछ एनिमेटेड वीडियो तैयार किए हैं। मैं चाहूँगा कि आप कुछ एनिमेटेड वीडियोस को देखें और तब आप इसको समझें, और फिर मैं आपको उसका एक्सप्लेनेशन दूंगा। तब आपको ये चीज़ प्रॉपरली दिमाग में फिक्स बैठेगी कि किस तरह से ये कूलम्ब्स लॉ एग्जिस्टेंस में आया और कूलम्ब से इसको कैसे डिराइव किया, ठीक है, और इसका एक्सप्लेनेशन किया। ठीक है बच्चों, वीडियो देखिए। Coulomb's torsion balance. Charles Augustin de Coulomb measured the magnitudes of the electric forces between charged objects using the torsion balance which he invented. Coulomb's torsion balance is an instrument that enables us to verify experimentally the quantitative law of interaction between electrical charges. Coulomb's torsion balance consists of a cylindrical or square glass case closed by a lid. A glass tube emerges from the lid. The tube is closed with a piece of metal called torsion head. A torsion fiber is suspended from the torsion head. This fiber holds a horizontal needle made of lac with a small brass disc at one end and a sphere of elder pith at the other. The height of the needle is adjusted by a knob which is turned to wind the suspending thread on a horizontal axis. A scale that is circumscribed on the glass case is used to measure the torsion produced in the fiber. Let us see how Charles Augustin de Coulomb deduced the famous Coulomb's law. In order to study the intensity of the interaction force between two charged bodies, the brass disc was made to touch a small metal sphere, which was at the end of a glass rod suspended from a hole in the glass lid of the balance. Coulomb observed that the thread suspended from the needle did not move as both the disc and the sphere are without charge. The sphere suspended from the lid of the balance was removed and charged. He placed the sphere back into the balance. The sphere and the brass disc repelled each other as the disc attained the same charge as the sphere. As a result, the needle started oscillating. The torsion angle of the thread was measured using the degree scale marked on the glass case. In order to ascertain the ratio between the interaction force and the electrical charge on the bodies, Coulomb removed the sphere suspended from the glass rod and placed in contact with another sphere of the same size. As a result, the charge of the sphere was reduced to half. The sphere was placed back into the balance. It was observed that the electric repulsion between the charged bodies was less. He then calculated the ratio between the interaction force and the electrical charge on the bodies by measuring the angle of torsion. Coulomb found that the force between two-point charges was directly proportional to the product of magnitude of two charges and inversely proportional to the square of the distance between them. Mathematically, if two bodies carrying charges q1 and q2 are separated by a distance r, then the force is given by F is directly proportional to q1 q2. F is directly proportional to 1 by r square.
F is directly proportional to Q1 Q2 by R square. F is equal to K into Q1 Q2 by R square. K is the proportionality constant called the electrostatic force constant. The value of K is equal to 1 by 4 pi epsilon naught, that is equal to 9 into 10 to the power 9. The relation F is equal to K into Q1 Q2 by R square is known as Coulomb's law. अभी इस वीडियो में देखा कि जैसे ही बॉल विच कंटेन द चार्जेस, जिसके ऊपर कुछ चार्जेस है, जैसे ही इस बॉल बी की तरफ आता है, बॉल पर बी पर भी कुछ चार्ज होता है, और जैसे ही वो उसके नजदीक या इसको टच करता है, सडनली हम देखते हैं कि बॉल भी रिपेल हो जाता है, यानी बॉल बी से दूर की तरफ चला जाता है, जिससे ये स्प्रिंग में ट्विस्ट आ जाता है, और इस ट्विस्ट के जरिए हम मेजर करने की कोशिश करते हैं कि कितना मैग्नीट्यूड है रिपल्शन का यहाँ से। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पर इस पर कुछ चार्जेस है, इस बॉल पर मान लो कुछ चार्जेस है Q1 और इस बॉल पर कुछ चार्जेस है Q2। अब जैसे ही ये बॉल इसके नजदीक आएगा, दोनों के बीच में होगा रिपल्शन, और रिपल्शन की वजह से दोनों बॉल एक दूसरे से मान लो इनिशियली कहां नजदीक थे, अब जैसे ही ये बॉल इसके नजदीक आएगा, ये अब दूर चला जाएगा, तो इसने यहां पर इसको क्या कर दिया, फोर्स ऑफ रिपल्शन लगा दिया। अब उसने ये देखा कि इस पर बी पर कितना चार्ज है और ए पर कितना चार्ज है, और इसके बेस पर हम लोग ने इस फोर्स का कैलकुलेशन किया है कि ये फोर्स, हाउ द फोर्स, बिकॉज वो रिपीटेटिव प्रोसेस है, हर बार हम लोग क्या करते हैं, इस बॉल को इससे टच करते हैं और इसके चार्ज को हाफ कर देते हैं, फिर इसके नजदीक लेके आते हैं और इसे टच करवाते हैं, तो फिर यहाँ पर वापस से रिपल्शन होता है, फिर से इस बॉल ए को लेके जाते हैं, फिर से वापस चार्ज को हाफ करवाते हैं, यानी पहले बार चार्ज Q1 है, दूसरी बार चार्ज इस पर टच करा के लेके आएंगे तो Q1/2 हो जाएगा, फिर Q1/4 हो जाएगा, फिर से टच करा के लेके आएंगे, इसी तरह से, क्योंकि ये दोनों बॉल बिल्कुल आइडेंटिकल है, और इस तरह से ये इस पर चार्ज का जो अमाउंट है बॉल ए पर, वो हर बार रिड्यूस होता रहता है हाफ से, और जैसे ही मैं इसके नजदीक इसको टच कराऊंगा, ये चार्जेस की शेयरिंग हो जाती है, और डिपेंडिंग अपॉन दैट कि इस पर फोर्सेस आते हैं, तो ये फोर्स हर बार ये वैल्यू है, ये चार्जेस है, ये चार्जेस की वैल्यू बदल रही है, और इस वजह से ये जो फोर्स है, ये फोर्स की वैल्यू बदल रही है। तो कूलम्ब ने इसको ऑब्जर्व किया कि चार्ज के चेंज होने से फोर्स की वैल्यू चेंज हो जाती है। तो कूलम्ब ने इन सब चीजों को ऑब्जर्व करते हुए दो कंक्लूजन पर पहुंचा। ही रीच्ड टू द टू कंक्लूजंस। तो फर्स्ट कंक्लूजन इज दैट ही सेड दैट इफ सपोज आई हैव अ 2 पॉइंट चार्ज, ही सेड दैट कि अगर मान लो मेरे पास 2 पॉइंट चार्ज हो, पहला पॉइंट चार्ज है Q1 और दूसरा पॉइंट चार्ज है Q2, और दोनों को r डिस्टेंस पर यदि रखा गया हो, अगर दोनों को r डिस्टेंस पर यदि रखा गया हो, तो ये चार्ज इसको रिपेल करेगा विद द फोर्स F, और ये चार्ज इसको रिपेल करेगा विद द फोर्स F, क्योंकि ये फोर्स म्यूचुअल है, इसलिए इक्वल एंड अपोजिट होगा। और ये फोर्स की वैल्यू होगी कितनी, तो सबसे पहला द मैग्नीट्यूड ऑफ द फोर्स, द मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स बिटवीन टू चार्जेस। फर्स्ट किस पर बच्चों डिपेंड करेगा, इट डिपेंड्स अपॉन द प्रोडक्ट ऑफ द चार्जेस। पहले ये किस पर डिपेंड करता है, ये प्रोडक्ट ऑफ द चार्जेस, ऐसा कूलम्ब का कंक्लूजन था। कूलम्ब ने ये ढूंढ के निकाला कि दोनों चार्जेस के बीच में जो फोर्स लग रहा है F, ये F का जो मैग्नीट्यूड है तो किस पर डिपेंड करेगा, डिपेंड्स अपॉन, और कैसा डिपेंडेंसी, डायरेक्ट प्रोपोर्शनल, डायरेक्ट डिपेंडेंसी, डायरेक्टली डिपेंड्स अपॉन, बस डायरेक्टली डिपेंड्स ऑन, इसको मैं रख कर दे रहा हूं, डिपेंड्स ऑन प्रोडक्ट ऑफ द चार्जेस। ये चार्जेस के प्रोडक्ट पर डिपेंड करता है, यानी Q1 और Q2 की वैल्यू पर डिपेंड करता है, Q1 और Q2 के वैल्यू पर डिपेंड करता है। सेकेंड, magnitude of the force between the two charges inversely depends upon square of distance between two charges,
ठीक है बच्चों, समझ में आइए। तो पहला उसने क्या बोला कूलम्ब्स ने, ये जो फोर्स बच्चों आ रहा है ये Q1 और Q2 के बीच में, ये सबसे पहले चार्जेस के मैग्नीट्यूड पर यानी चार्जेस के प्रोडक्ट पर डिपेंड करता है, Q1 into Q2 पर डिपेंड करता है। और दूसरा वो डिस्टेंस पे डिपेंड करता है, हाउ इट डिपेंड्स अपॉन द डिस्टेंस, इनवर्सली डिपेंड्स अपॉन द डिस्टेंस। तो अगर मैंने दोनों स्टेटमेंट को अकाउंट में लो, इसको और इसको, तो मैं लिख सकता हूं पहले स्टेटमेंट से फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रोडक्ट ऑफ द चार्जेस, डायरेक्टली डिपेंड्स अपॉन द प्रोडक्ट ऑफ द चार्जेस। तो ये F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q1 into Q2। सेकेंड, वो किस पर डिपेंड करता है बच्चों, वो डिस्टेंस के स्क्वायर पर डिपेंड करता है, इनवर्सली डिपेंड्स अपॉन द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस। तो दिस माय इक्वेशन नंबर 1, दिस माय इक्वेशन नंबर 2। इसको मैं रब कर देता हूं, फिर इसको मैं लिखूंगा। तो ये क्या होगा, फ्रॉम 1 and 2, फ्रॉम 1 and 2, इस चीज को ऐसा लिखा जा सकता है, आप देख सकते हैं इसको कैसे लिखा जा सकता है, F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। ये हम लोग ने एलिमेंट्री स्कूल में पढ़ा हुआ है कि प्रोपोर्शनल साइन हटाने के लिए कांस्टेंट्स का मल्टीप्लाई किया जाता है। यहाँ पर हम कांस्टेंट्स का मल्टीप्लाई करेंगे। सो यहाँ पर F इज इक्वल टू सम कांस्टेंट, लेट्स से K हियर, Q1 Q2 अपॉन R। दिस माय इक्वेशन नंबर 3। कूलम्ब्स ने एक बात और पता चल लगाई कि ये जो चार्जेस के बीच का जो फोर्स है ये 3 फैक्टर्स पर डिपेंड करता है। सबसे पहला चार्जेस, दूसरा डिस्टेंस जो कि सीधे सीधे यहां से दिखाई पड़ रहा है, पहला चार्ज, दूसरा डिस्टेंस, और तीसरा है मीडियम बिटवीन द टू चार्जेस। अभी तक ये मीडियम नहीं आया है इसके बीच में, फोर्स चार्जेस पर और डिस्टेंस पर तो आ गया, लेकिन अभी तक मीडियम नहीं है। तो डेफिनेटली के जो भी यहां पर है वो मीडियम से एसोसिएटेड कांस्टेंट है। ठीक है, तो जब इसकी वैल्यू हम निकालते हैं के की, तो के की वैल्यू आती है हियर, इस के इज इक्वल टू 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इन एयर या फिर वैक्यूम में। एयर और वैक्यूम में ये वैल्यू कितनी आती है बच्चों, 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। अभी एप्सिलॉन नॉट क्या है, एप्सिलॉन नॉट इज कॉल्ड परमिटिविटी ऑफ एयर, अंडरस्टूड दैट। और इसकी जो वैल्यू होती है बच्चों, ये होती कितनी है, इसकी वैल्यू होती है 9 into 10 to the power 9। कितनी होती है बच्चों ये, 9 into 10 to the power 9 न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन कूलम्ब स्क्वायर। सो दिस इज द वैल्यू ऑफ 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। तो ये अगर मैं इसको सब्स्टिट्यूट करूं इक्वेशन नंबर 3 में, तो F की वैल्यू कितनी होगी, 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। सो ये हो गया मेरा इक्वेशन नंबर 4। तो कूलम्ब्स लॉ से हमको ये फॉर्मूला मिलता है, और ये फॉर्मूला बताता है कि द फोर्स बिटवीन द टू चार्जेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रोडक्ट ऑफ द चार्जेस, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन देम, एंड हाउ इट डिपेंड्स अपॉन द मीडियम आल्सो। If medium is other than air vacuum, if the medium is other than vacuum, then same formula can be written like, same formula को हम इस तरह से लिख सकते हैं, F is equal to 1 upon 4 pi epsilon Q1 Q2 upon R स्क्वायर। तो बच्चों ये एप्सिलॉन और एप्सिलॉन नॉट में ये क्या डिफरेंस है, दिस इज द परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, परमिटिविटी ऑफ एयर एंड वैक्यूम, whereas epsilon is the permittivity of medium other than air vacuum, other than एयर या फिर वैक्यूम। ठीक है, सो ये हो गया मेरा इक्वेशन नंबर 5। ठीक है बच्चों, इतना क्लियर है, इतना सबको समझ में आएंगे। अब इसमें कुछ बेसिक चीजें भी हम दिखाई पड़ते हैं। अब सबसे पहले यहां पर आप देखिए कुछ बेसिक फैक्ट्स की, कि फोर्स इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर। जब भी कोई फोर्स
डिपेंड्स अपॉन 1/r²। ऐसे फोर्स में हम देखते हैं जब भी फोर्स का नेचर इस तरह से होता है, जैसे हम लोगों ने ग्रेविटेशन में देखा था, जब भी फोर्स का नेचर अकॉर्डिंग टू 1/r² होता है, ऐसे फोर्सेस को हम कहते हैं सेंट्रल फोर्स। क्या कहा जाता है बच्चों? सेंट्रल फोर्स। यानी इसकी जो फोर्स की जो एजेंसी है, जहां से ये प्रोड्यूस हो रहा है, वो कहीं ना कहीं सेंटर में सिचुएटेड है और जो सराउंडिंग बॉडीज पर एक्ट हो रहा है, लेकिन द सोर्स ऑफ द फोर्स इज सिचुएटेड एट द सेंटर ऑफ द बॉडी। यही कारण है कि एटम्स में न्यूक्लियस पॉजिटिवली चार्ज होता है और इलेक्ट्रॉन पे जो भी फोर्स होता है वो इस तरह से एक्ट होता है। तो फोर्स इज अलोंग द रेडियस टुवर्ड्स द सेंटर, दैट इज द इलेक्ट्रोस्टैटिक इन नेचर एंड दैट प्रोवाइड द रिक्वायर्ड सेंट्रीपिटल फोर्स। ये हम लोग बाद में पढ़ेंगे कभी, ठीक है। तो जब भी फोर्स का नेचर 1/r² हो तो ऐसे फोर्स को क्या कहा जाता है? सेंट्रल फोर्स। इज इट क्लियर? और ऐसे फोर्सेस हमेशा कंजर्वेटिव होते हैं, ठीक है। हियर F which is equal to I have derived here, ये जो F है here, force between two charges is conservative force। अब कंजर्वेटिव फोर्स बच्चों क्या होता है ये हम डिटेल में कभी पढ़ेंगे, लेकिन मैं आपको इन शॉर्ट बता देता हूं। तो कंजर्वेटिव फोर्स का मतलब है द वर्क ड्यू टू दैट फोर्स डू नॉट डिपेंड्स अपॉन द पाथ बट इट डिपेंड्स अपॉन द एंड पॉइंट। मतलब आप जो है इस फोर्स के द्वारा जब भी कोई वर्क डन करेंगे तो वहां पर आपका जो वर्क डन होगा वो पाथ पर नहीं, एंड पॉइंट्स पर डिपेंड होगा। आप कैसे जाते हैं ये मैटर नहीं करता है, यहाँ पर आप कहां से कहां तक जाते हैं केवल इस पर मैटर करता है सब, ठीक है। तो ऐसे फोर्सेस को हम क्या कहते हैं? कंजर्वेटिव फोर्सेस। तो ये जो कूलम्ब का फोर्स है ये सेंट्रल फोर्स भी है और कंजर्वेटिव फोर्स भी है। इज इट क्लियर? आई होप आपको ये समझ में आया होगा ये, ठीक है। आप इसको अच्छे से देखिए और आपको अगर इस पे और भी बहुत सारे क्वेरीज और क्वेश्चंस हो तो आप मुझे कमेंट्स में मुझसे ये क्वेश्चंस पूछ सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो ऑन कूलम्ब।